Hello students, today's topic is political parties, chapter 6, class 10. इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे what is political party, what are the different types of political party like state party and national party. Okay, political parties, as we know in democracy there is party system and every democratic country has parties, political parties. In our country, there are two types of political party. First one is national political party and the second one is state political party. तो हम जानेंगे कि which one is called national political party and which one is called state political party. In other word, state political party किसको कहते हैं, national political party किसको कहते हैं. First of all, national political party that secures at least 6% of votes in Lok Sabha elections or assembly election in 4 states and win at least 4 seats in the Lok Sabha. This is the criteria to be the national party in our country. If a political party secures 6% of vote in the Lok Sabha election or 6% vote in 4 assembly elections of different states and win at least 4 members of Lok Sabha, 4 parliamentary members, MPs, then such a party is said to be national political party. For example, in our country there are so many national political parties. For example, BJP, Bharatiya Janata Party, INC, Indian National Congress, CPI, Communist Party of India, CPIM, Communist Party of India, Marxwadi. These are the political parties which has been recognized as national political party in our country. Second one is the state party. It is also called regional party. क्षेत्रीय पार्टी जिसको कहते हैं, ये इफेक्टिव होते हैं जनरली किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, रीजनल पार्टी है. इनको कैसे हम डिफाइन करेंगे या इनका रिकॉग्निशन कैसे किया जाता है. The political party that secures 6% of total votes in legislative assembly election of a state and wins at least 2 seats. जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी स्टेट के असेंबली इलेक्शन में कम से कम 6% ऑफ टोटल वोट्स गेन करे और 2 विधायक एमएलए जो है कम से कम उसके जीते, तब उसको स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिलता है. कंडीशन क्या है? 6% of the total votes in legislative assembly election of a state and wins 2 seats in assembly election, then a party is said to be a state political party. और जैसे मैंने बताया कि in our country there are so many state political party in different state. In Tamil Nadu, DMK, Dramid Munnetra Kazhagam. In Bihar, RJD, ZDU, Rashtriya Janata Dal United. In Maharashtra, SS Shiv Sena. In Jharkhand, JMM, Jharkhand Mukti Morcha. In Uttar Pradesh, SP, Samajwadi Party. These all are the state political party or regional party. Next, components of a political parties. अब जब political parties है तो इसका composition क्या है, इसके different components क्या है. There are 3 main components of a political party. One, the leaders. Second, active members. And third, the followers. First of all, leaders. One who leads the party are called leaders. Every party has so many leaders and hold different posts in the political party like president, general secretary, state president. तो ये political leaders हो गए और मेजोरिटी में आने के बाद वे लीडर्स जो हैं मिनिस्ट्री में रहते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, तो ये लीडर्स हो गए. सेकेंड कंपोनेंट्स होता है पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिव मेंबर्स. दोज मेंबर्स हु प्ले एक्टिव रोल इन द पार्टी एंड होल्ड द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी. जो एक्टिव रोल प्ले करते हैं, पार्टी का मेंबरशिप लिए हुए होते हैं, रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं, उनको हम एक्टिव मेंबर कहते हैं. एंड द थर्ड कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज फॉलोअर्स. फॉलोअर्स जैसे कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ आइडियोलॉजीज होते हैं,
उनका अपना एजेंडा होता है, उनका अपना मैनिफेस्टो होता है, उनकी विचारधारा है। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हैज डिफरेंट आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी डिफरेंट होना ही डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को जन्म देता है। तो हर व्यक्ति, जितने भी हमारे देश में लोग हैं, उन जो व्यक्ति को जिस पार्टी का आइडियोलॉजी पसंद है उसको वो फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं, वोटिंग के समय उसको वोट करते हैं। तो सच पर्सन्स which follow the ideology of any political party are the followers. In this way, there are three components of a political party: the leaders, active members, and the followers. Next one is the partisanship. अब partisanship क्या है? A person who is strongly committed to a party, group or faction. As parties are about a part of the society, they involve partisanship. अब जो व्यक्ति पार्टी के प्रति स्ट्रांगली कमिटेड हो, स्ट्रांगली कमिटेड मीन्स पार्टी के सारे मीटिंग में शामिल होना, झंडा ढोना, हर तरह से जब जरूरत पड़ती है पार्टी को, धरना प्रदर्शन, मीटिंग शीटिंग, सब में वो एक्टिव रहे, टोटली कमिटेड है, उसको बोलेंगे पार्टीशनशिप। नेक्स्ट वन इज द रोल ऑफ ऑपोजिशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रोल ऑफ ऑपोजिशन और रोल ऑफ रूलिंग पार्टी दो है। एक रूलिंग पार्टी होती है और ऑपोजिशन होता है, दोनों का अपना अपना रोल है। अब जो ऑपोजिशन पार्टी है उसका रोल क्या है? द मेन रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी टू चेक द गवर्निंग पार्टीज। जो गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको चेक एंड बैलेंस के लिए ऑपोजिशन होता है। ऑपोजिशन उनमें जो भी उनकी पॉलिसीज में खामियां होगी, त्रुटियां होंगी, डिमेरिट्स होंगे, उसको वो इंगित करेगी और इस तरह से वो चेक एंड बैलेंस का काम करती है। अपोजिशन का काम है चेक एंड बैलेंस का, ताकि जो रूलिंग पार्टी है वो किसी भी तरह से अपना मनमानी ना करे। अगर रूलिंग पार्टी कोई गलत काम करती है, कोई पॉलिसी उसकी गलत है, लोकहित में नहीं है, बेनिफिशियरी नहीं है, तो उस पॉलिसी को लेकर के मुखर रहेगी ऑपोजिशन पार्टी, हाउस से लेकर के बाहर तक, सड़क से सदन पर उसका विरोध करेगी। इट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपोजिशन इन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक, पार्टी सिस्टम। In different country of the world, there are some different types of party system. Somewhere one party system, somewhere double party system, or also called two party system. Somewhere multi party system. Single party system, also called one party system. Double party system, also known as two party system. And multiple party system, जहाँ बहुत सारे पार्टी हैं, अनगिनत पार्टियां। तो तीन तरह से हमारे पूरे वर्ल्ड में जो डिफरेंट कंट्री हैं वहां तीन तरह की पॉलिटिकल पार्टी है। कहीं एकल पार्टी सिस्टम है, कहीं दोहरी पार्टी सिस्टम है, और कहीं कई पार्टी सिस्टम है। फॉर एग्जांपल, सिंगल पार्टी सिस्टम चाइना में एग्जिस्ट करता है। वहां सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। एक ही पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इलेक्शन लड़ेगी, इलेक्शन जीतेगी, गवर्नमेंट बनाएगी। सच अ फॉर्म इज कॉल्ड सिंगल पार्टी सिस्टम। सेकेंड इज डबल पार्टी सिस्टम। In the country like USA and UK, there is double party system. वहां दो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है और उन्हीं दो पार्टी सिस्टम की पार्टी के बीच इलेक्शन जीत करके और किसी एक पार्टी का गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है। तो डबल पार्टी सिस्टम का एग्जांपल हो गया यूएसए एंड यूके। मल्टी पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री, इन इंडिया देयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारे कंट्री इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मोर देन 700 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, 700 से ज्यादा पार्टियां हमारे देश में। तो इस तरह से हमारे यहां इंडिया में मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। नेक्स्ट, एफर्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है, देखा गया कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज में मैल प्रैक्टिसेस, मैल फंक्शनिंग, करप्शन जब भी गवर्नमेंट में आए या करप्शन का सहारा लेकर के गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, जीतने के लिए बहुत सारी जो कुरीतियां थी उसको रोकने का प्रयास, एफर्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करना,
मतलब उनमें जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने की जो प्रयास था उसको बोला गया एफर्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। इसके लिए क्या किया गया, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया एंड इट वाज मेड मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी इलेक्टेड मेंबर्स आइदर इन लोकसभा और इन लेजिस्लेटिव असेंबली दैट जीतने के बाद कोई भी एमपी या एमएलए अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, ये मैंडेटरी कर दिया गया। एमपीज एंड एमएलए कैन नॉट चेंज। नहीं तो होता क्या था कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से जीत कर आया और उसके बाद वो दूसरी पार्टी में, गवर्नमेंट में जो पार्टी गई उसके साथ चला गया। तो इस तरह से ये जो जनता चुनती थी उसका एक तरह से अपमान था। इट वॉज नॉट ए गुड वे इन डेमोक्रेसी। दैट इज वाई देयर मेड एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन and it made mandatory for each and every elected members of Lok Sabha and state assembly that he cannot change his party after winning elections in Lok Sabha or legislative assembly। ये फर्स्ट रिफॉर्म का फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या लिया गया, इट हैज बीन मेड मैंडेटरी टू फाइल एंड एफिडेविट। हर कैंडिडेट को, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट हो, इंडिपेंडेंट हो, उसके लिए मैंडेटरी कर दिया गया, अति आवश्यक, कि वो एक एफिडेविट फाइल करे एंड गिव हिज हर डिटेल्स इन द एफिडेविट रिगार्डिंग असेट्स, क्रिमिनल केसेस पेंडिंग इन कोर्ट अगेंस्ट हिम हर। जो भी इलेक्शन फेस करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से हो या इंडिपेंडेंट हो, उनके लिए यह मैंडेटरी है कि वो अपना एक एफिडेविट फाइल करें और उसमें वो क्लियर करें कि उनका जो है असेट्स क्या है, उनके पास कितनी संपत्तियां हैं, चल अचल संपत्ति की घोषणा करना, और अगर उनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है तो उसका भी उस एफिडेविट में वर्णन होना चाहिए, डिस्क्राइब किया होना चाहिए। यह एफिडेविट मैंडेटरी बना दिया गया। तो इससे क्या हुआ, लोगों को अपने कैंडिडेट जिन्हें वो चुनने जा रहे हैं, चाहे वो एमपी या एमएलए, उनको समझने परखने में मदद मिली। उन्हें पता चलता है कि उनके कैंडिडेट जो हैं क्रिमिनल केसेस उन पर है या नहीं है, उनकी जो संपत्ति है क्या है, कितनी है। एक तरह से ये ट्रांसपेरेंसी लाई गई। थर्ड पॉइंट जो पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए किया गया, इसमें इलेक्शन कमीशन हैज पास्ड एन ऑर्डर टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर आईटीआर। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया। इलेक्शन कमीशन क्या है, इंस्टीट्यूशन है जो टोटल इलेक्शन जो भी देश में होते हैं उसकी गवर्निंग बॉडी है। तो इसने एक ऑर्डर पास किया कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन होल्ड करें, यानी पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और उसमें इलेक्शन करा करके उसका प्रेसिडेंट, उसका सेक्रेटरी जो भी है उसका इलेक्शन कराए। ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन जिसको बोलते हैं, इलेक्शन विद इन द पार्टी फॉर डिफरेंट पोस्ट, ये मैंडेटरी कर दी। और दूसरा कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो भी वो किसी कारपोरेट से या किसी से जो चंदे के रूप में फंडिंग लेती है उसका आईटीआर फाइल करे, इनकम टैक्स रिटर्न। पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो इनकम होता है उसका भी आईटीआर फाइल करे। ये भी इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया। तो इस तरह से ये 2-3 स्टेप्स लिए गए टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो इलेक्शन होते हैं उसमें मसल पावर और मनी पावर का बहुत बड़ा रोल होता है। ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी वांट्स टू विन एज मेनी सीट्स एज दे कैन एनी हाउ। हर हाल में वो जीतना चाहते हैं। तो हर हाल में जीतने के लिए कई बार होता है कि चाहे वो पर्सन मनी का दुरुपयोग करके जीत जाए तो भी उनको दे दो टिकट, अगर किसी के पास मसल पावर है, दबंग है, हिस्ट्री सीटर है तो भी उसको दे दो। एनी हाउ दे वांट टू विन द सीट, वो जीतना चाहते हैं। तो इस तरह से देखा गया कि जो इलेक्शन के समय मसल पावर और मनी पावर की भी बहुत बड़ा रोल होता है। मनी पावर, जिसके पास बहुत पैसे हैं वो पैसे दे करके वोट खरीदने का काम करता है। कई बार हम लोग देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि
राज्यसभा इलेक्शन हो रहा है, राज्यसभा में एमएलए लोग ही जो करोड़ों रुपया में खरीदे गए, करोड़ों रुपया ले लिए और वोट दे दिए। ये मनी पावर का दुरुपयोग है, मनी पावर का कमाल है। अब कई बार देखा जाता है गांवों में लोगों को डरा धमका करके कि उनका वोट ले लिया जाता है, ये मसल पावर का कमाल है। तो मनी पावर और मसल पावर भी काफी रोल प्ले करता है इलेक्शन के समय में, बट इट इज मैल प्रैक्टिसेस, इट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, डायनेस्टिक सक्सेशन। अभी परिवारवाद जिसको बोलते हैं, कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो डायनेस्टिकली चले आ रहे हैं। जैसे अगर हम थोड़ा देर के लिए कांग्रेस को भी एग्जांपल ले लें तो उसमें डायनेस्टिकली चले आ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, डायनेस्टिकल हो गए। कई स्टेट पार्टियां, इन बिहार लालू यादव, उनका बेटा तेजस्वी यादव, इन झारखंड शिबू सोरेन, उनका बेटा हेमंत सोरेन, हर पार्टी में, बीजेपी में भी है राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह। ये जो है डायनेस्टिकल सक्सेशन कि पिता, पिता के बाद बेटा, बेटा के बाद उनका बेटा, इसको बोलेंगे डायनेस्टिक सक्सेशन। तो कई, लगभग हर पार्टी में, चाहे वो साउथ की पार्टी हो, हमारे नॉर्थ की पार्टी हो, ईस्ट वेस्ट, किसी भी डायरेक्शन, ऑल ओवर इंडिया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये कमोबेश है। तो डायनेस्टिक सक्सेशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। इससे क्या होता है कि जो एक्टिव है, जो ज्यादा पार्टी के लिए काम किए, वो वंचित रह जाते हैं। जिन्हें हक होता है उनका हक मारा जाता है, और मंत्री जी, अध्यक्ष जी का बेटा पार्टी खुद बनाए, उनका बेटा फिर बन गया, वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो डायनेस्टिकल सक्सेशन, तो ये फिर हम चले जाते हैं वंशवाद की राजनीति जो पहले हुआ करती थी, राजशाही, इसको डेमोक्रेटिक हम नहीं कहेंगे। नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं उनके क्या फंक्शन है? तो पॉलिटिकल पार्टीज का पहला फंक्शन है टू कंटेस्ट इलेक्शन। जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है, और इलेक्शन कंटेस्ट करके वो जीत करके और मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट में जाना चाहती है। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन द इलेक्शन। सेकेंड, पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। हर पॉलिटिकल पार्टीज का अपना पॉलिसी होता है, प्रोग्राम होता है, उसको वो जनता के बीच ले जाती है कि मैं अगर सत्ता में आऊंगा, जीत कर आऊंगा, तो मैं लैपटॉप दूंगा, मैं खुलवाऊंगा, हॉस्पिटल बनवाऊंगा। ये सारी प्लानिंग जो होते हैं, पॉलिसीज जो होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को जनता के बीच ले जाते हैं। ये दूसरा उनका फंक्शन हो गया, टू पुट फॉरवर्ड देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम अमंग्स द पीपल ऑफ द कंट्री, मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। और जो वो सत्ता में आते हैं तो देश के लिए लॉ बनाने का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज का हो जाता है। फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। जब वो मेजोरिटी के साथ जीतते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी के साथ जीतती है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए इन आवर कंट्री टू मोर देन हाफ, एनी हाउ मोर देन हाफ जो सीट्स अगर जीत गई पॉलिटिकल पार्टी तो मेजोरिटी कहलाएगा, और इस तरह से वो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी गवर्नमेंट बनाती है। अब कई बार देखा क्या जाता है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टीज टू विन मोर देन हाफ, देन दे मेक अ कोalition। तब स्थिति बनती है कि वो कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अब कोalition गवर्नमेंट में क्या है कि टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन टुगेदर एंड अटेन मेजोरिटी। तब 2, 3, 4, 5 पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके मोर देन हाफ सीट्स जो हैं वो शो करते हैं, और तब जाकर के उनकी मेजोरिटी बनती है, वो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। प्लेइंग ऑपोजिशन रोल। अब पॉलिटिकल पार्टीज का गवर्निंग रोल भी है, ऑपोजिशन रोल भी है। द पार्टी विच हैज मेजोरिटी विल प्ले रोल एज ए गवर्निंग बॉडी, governing party, and the party which has no majority will play a role of opposition। तो जिसको मेजोरिटी नहीं मिलेगा वो अपोजिशन में पार्टी रहेगी और अपोजिशन का रोल प्ले करेगी। अपोजिशन का रोल मैंने पहले ही बताया कि टू चेक एंड बैलेंस द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एंड डिसीजन। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और डिसीजन होती है उसको चेक एंड बैलेंस का काम होता है अपोजिशन का। एंड द लास्ट पॉइंट, द लास्ट फंक्शन,
नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज टू प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। जो पॉलिटिकल पार्टी है लोगों को गवर्नमेंट का जो मशीनरी है वहां तक लोगों की पहुंच बन पाए, गवर्नमेंट मशीनरी के द्वारा उनके काम हो, या जो गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स है उसका लाभ लोगों को मिले, ये लाभ पहुंचाने दिलाने का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज करती है।